According to Archimedes principle, what is magnitude of upward force? Right answer C. It is equal to weight of fluid displaced by body. Next question. The metal which will not displace lead from its salt solution. Right answer copper. Third, which energy change is generally associated with decomposition reaction? Right answer B होगा एंडोथर्मिक एनर्जी चेंज। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? मतलब आपका जो टेम्परेचर उनका ऑब्जर्व होने के बाद वो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उस तरह, ठीक है। फॉर क्वेश्चन, which of following characteristic correct above magnetic field line? they always from closed loop होता है ना, closed loop। 5, which following not true about object is non uniform motion? right answer the change in velocity is 0 over time interval। which following allotrope of carbon conduct electricity? right answer graphite। 7, the mechanical energy of body can express as sum of potential energy and kinetic energy। 8, which following nutrient in plant is generally supplied by soil? boron। right answer। आपको याद रखना है, ठीक है, बोरॉन और सॉइल से सप्लाई होता है। 9, which following cell organelle do not have their own DNA? लाइसोसोम। लाइसोसोम का डीएनए नहीं होता है ना। What does the seed contain that essential for growth of new plant? right answer embryo। 11, a car start from rest acceleration uniform 2 meter per second square in for 5 seconds। what is velocity of end of 5 सेकेंड? देखिए वेलोसिटी मतलब देखिए आपका रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन गिवन है 2 5 सेकेंड, वेलोसिटी एंड ऑफ 5 सेकेंड, टाइम 5। देखिए आपको v इक्वल टू यू प्लस 80 पुट करना है, v पूछा जा रहा है u 0, ये 25 10 हो जाएगा ना 12। when Newton placed second inverted prism after first one the emerged beam obtained was white light। a metallic conductor of a Ohm's law at room temperature when apply potential difference across it increase from V to 2V and temperature is keep constant, the current through the conductor double because resistance constant। देखिए V इक्वल टू IR होता है ना, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब यहीं पे V डबल इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, देन आपका O वाला I डबल बिकॉज रेजिस्टेंस कांस्टेंट इसीलिए हो गया ना। देखिए अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V टू V देन टेम्परेचर की कांस्टेंट, करंट डबल हो जाएगा ना इसीलिए। 14, what happen when dissolve sugar in water? the particle of sugar get into space between particle of water। 15, xylem is complex permanent tissue which following correct regarding composition? right answer B हो जाएगा tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber। 16, what is function of salivary amylase present in human saliva? right answer it converts starch into simple sugar। 17, an object is placed at center of curvature of concave mirror, the image from at the center curvature same size। 18, what part of brain directly control movement? voluntary muscle। right answer motor area।
वॉल्यूंटरी मसल क्या है, मतलब आप जो जिस को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब वो जो लेग का मसल, ठीक है, आर्म का मसल, उस वाला। हुई जो फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, बी कुकिंग फूड, वो नहीं होता ना। 20 which following best describe the process of sexual maturation in human? It is gradual process during adolescence involving physical and hormonal changes. 21 which following the example of basic salt, b sodium bicarbonate, उनका राइट आंसर होगा। 22 in some reptile the sex of offspring is determined by temperature at eggs are incubated. 23 which property of so by ethanol, right answer D, it is sweet, smell and volatile. 24 when we pour acetone in our palm, मतलब वो जो हाथ में, we feel cold because it evaporate rapidly observing heat from palm. 25 which following statement is correct regarding the property of gaseous state, right answer B, in gaseous state intermolecular distance is very large and intermolecular attraction is very low. देखिए अभी मैथ का क्वेश्चन आया, देखिए वो आप सिंपल है ना, इसी को आप कैलकुलेट करिए। पहले उनका काम करोगे, उनका काम का बीच में पहले उनका काम करिए, देन उनका डिवाइड का काम इनटू प्लस माइनस का काम करोगे ना, वो भी आप कर लीजिए, वो भी इजी है ना। 9x² माइनस 4y² इंटू 9x प्लस 6y, वही तो गिवन है ना। इसमें यहीं पे थोड़ा अच्छा, इसी को छोड़ दीजिए, हमें यहीं पे शायद इनटू है कि वो वाला है, आप इजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए दी मार्क प्राइस ऑफ सोफा इज इतना 40% अबव कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज 41% अबव कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट 22, फाइन डिस्काउंट परसेंट। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपको प्रॉफिट करना है 22, मतलब 122 में इसी को बेचेगा ना। देखिए आप मार्क प्राइस कितना करोगे, देखिए हुई 41, देखिए मार्क प्राइस 41 मतलब 141 होगा ना मार्क प्राइस। देखिए फाइन डिस्काउंट पर मार्क प्राइस ऑफ सोफा इज आपको गिवन है। अच्छा 144 का वैल्यू कितना 331, इसे कितना टाइम ज़्यादा, देखिए उनका ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 19 है ना। देखिए आपको डिस्काउंट कितना मिला 19 मिल रहा है, 9 ऑलवेज मार्क प्राइस से होता है ना, इंटू 100, इसी को लीजिए सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट आंसर डी मिल जाएगा आपको। द डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना 24, मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस 24 एंड 7 पेरीमीटर। देखिए आपको पता है ना जब 2 डायगोनल देता है, अब क्या होता है ना, डायगोनल प्लस डायगोनल, सॉरी 24 प्लस 7 इक्वल टू 4 इंटू ए मतलब a², कितना होगा 631 बाई 4a²। नहीं वो वाला नहीं है, देखिए आपका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल, 2 डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है ना, तो 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 84, मतलब देखिए अब इसी को सबसे, देखिए इसी मेथड से करिए अब अच्छा होगा। वो कितना 12, वो कितना 3.5 हो गया ना, वो वाला आप निकाल पाओगे ना, कितना 12 प्लस 3.5² इक्वल टू कितना 144 प्लस
वो 12.25 हो जाएगा। देन टोटल कितना हो जाएगा 156.25, ठीक है। देन उनका रूट ओवर कर लीजिए। तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, मतलब जो ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, रूट ओवर 156.25 12.5 मतलब 12.5 ओ वाला आ गया। देन 4 इंटू 12.5 कर लीजिए, आ जाएगा 50। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, दोनों का गिवन है देखिए, 16x²। यहीं पे ओ वाला सेकंड मतलब इस तरह होगा ना, 20xy देन ओ वाला पूछा जा रहा है, मतलब 16x²। देखिए यहीं पे डायरेक्ट मैंने लिख लेता हूँ, 20 क्या हो गया 20xy इक्वल टू क्या होगा 20xy बाई जेड मान लीजिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, आप दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाई 16x² कर लीजिए, फॉर्मेट में आएगा 25y² आएगा इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एज द एवरेज ऑफ 12 number is 58, the average of first 5 number is 55, and the average of next 4 number is 62. If 10th number is 10 less than 11th number and 5 more than 12th number, then average of 11th and 12th number is what? देखिए क्या बोला जा रहा है, एवरेज 12 नंबर इज 58। 12 नंबर का टोटल नंबर कितना आ जाए, 12 इंटू 58 कितना आ जाएगा, 696 हो जाएगा ना। देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर कितना है 55, उनका नंबर टोटल नंबर कितना आ जाए 55 इंटू 5 कितना 275 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर मतलब 5 + 4 9th नंबर तक 4 इंटू 62 कितना 248 वो 5 नंबर अप टू 5 नंबर वो 9 नंबर तक इतना है गिवन। द 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर एंड 5 मोर देन 12th नंबर। देखिए 10th नंबर 10 लेस देन 11th नंबर, अच्छा, एंड 5 मोर देन 12th नंबर, देन एवरेज ऑफ 11 एंड 10 नंबर इज व्हाट। देखिए लेट 10th नंबर आप x मान लीजिए, ठीक है। 10th नंबर इज 10th लेस देन 11th नंबर, 11th नंबर x मान लीजिए, 10th नंबर कितना हो जाएगा x - 10 हो जाएगा ना, वही तो बोला जा रहा है ना। 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर एंड 5 मोर देन 12th नंबर, मतलब जो 10th नंबर 5 मोर देन 12th नंबर, ट्वेल्थ नंबर 10th नंबर से 5 ज़्यादा है ना, मतलब 10th नंबर x - 10 + 5 मतलब x - 5 हो जाएगा ना। देखिए x + x - 10 + x - 5 डिवाइड बाई 3, सॉरी 3 नहीं, उनका टोटल नंबर देखिए
यहीं पे 9th नंबर तक टोटल कितना 696 से माइनस कर लीजिए 696 माइनस 275 प्लस 248 173। देखिए उनका वैल्यू 173 है ना, है कि नहीं है, मतलब 3x इक्वल टू 173 प्लस 15 188 x कितना आ जाएगा 188 डिवाइड बाई 3। वो तो इस फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए यहीं पे आप x सॉरी 10 वो जो 10 वाला x पकड़िए, गलती हो गया, आसान होगा, मतलब इस साइड से भी आप देखिए लेट 10th ऑफ x मान लिया, ठीक है। देन 11th कितना हो जाएगा 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर, मतलब 11th नंबर x प्लस 10th हो जाए ना, हो गया ना। एंड 5 मोर देन 12th नंबर, 12th नंबर कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा ना, बस वही चीज़। देन आपको यहाँ पे क्या टोटल सम कर लीजिए, अभी x प्लस इस तरह कर लीजिए जिस तरह हुआ था, x माइनस 5 कितना आया था 696 माइनस 275 प्लस 248 173 वही तो है ना 696। देन 3x प्लस 5, मतलब इस साइड आके माइनस 5 हो जाएगा ना, 173 माइनस 5 168। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। देखिए देन आपको 11th एंड 10th का एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब 56 प्लस 66 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 56 61। समझा, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। देखिए वो एक दिन का एफिशिएंसी, उनका एक दिन का एफिशिएंसी, वो एक दिन का एफिशिएंसी है क्या। देन वो थ्राइस वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब टोटल वर्क 20 लिए थे, अभी 3 मतलब 60 टोटल वर्क हो गया। देन 60 डिवाइड बाई एक दिन, मतलब 3 का एक दिन का एफिशिएंसी 12, मतलब 5 डे में ख़त्म हो जाएगा। देखिए इफ 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 6 देन फर्स्ट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। देखिए आपका 6 से कटेगा, मतलब 3 से भी वो नंबर कट जाएगा ना। देखिए डिजिट सम आप 3 से कट जाएगा तो 3 से भी कट जाएगा, मतलब वहीं पे कितना होगा 11 प्लस 1 वो 12, और 12 3 से कट जाएगा, मतलब वो भी सिर्फ n का प्लेस में 1 पुट कर लीजिए। 34 क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC BD perpendicular to AC D at DBC 42 is a point on BC such that is point on BC CAE, देखिए दूसरा कलर से कर रहा हूँ, CAE 24 व्हाट इज मेजर ऑफ AEB एंगल कितना होगा। देखिए
इसे बड़ा थोड़ा करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह क्वेश्चन पिछला सेट में एक आया था, देखिए बी डी परपेंडिकुलर टू एस सी, मतलब वो 90 डिग्री हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये डायग्राम फिर से कर रहा हूँ। ए बी सी, बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब वो 90 डिग्री बन जाएगा। डी बी सी, डी बी सी 42, देखिए बी डी परपेंडिकुलर डी बी सी 42, ओ वाला कितना हो जाएगा, वो 3 एंगल 180 डिग्री होता है ना, मतलब 180 माइनस 90 प्लस 42 कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। माइनस ब्रैकेट 48 आ जाएगा, वो 48 आ गया। देन ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी में एक ई एक पॉइंट है, सो दैट सी ए ई एंगल 24, व्हाट इज मेजर ए ई बी, ओ वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, देखिए यहीं पे 48 और 24, ओ कितना हो जाएगा, 180, इस तरह कर लीजिए 180 माइनस 48 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48 7 ए बी सी 24 48 108 आ जाएगा, 108। देखिए वो दोनों मिल के 180 डिग्री होगा ना, वो 108 हो गया, मतलब वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108 72 आ जाएगा, 72। Ayush together invest 41,400 in business at end of year. Out of total profit of 5,000, Amul share was 2,300. How much Amul investment? देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अनमोल एंड आयुष इन्वेस्टेड टोटल कितना, इतना अमाउंट, एट एंड ईयर टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना। अमूल शेयर कितना है, देखिए अनमोल का शेयर 2,300 लिख लीजिए, टोटल कितना, इतना। देन उनका कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, 5,000 माइनस 2,300 कितना आएगा, 2,700। देखिए आपका जो रेशियो, मतलब कट कर लीजिए, रेशियो फॉर्मेट में जितना इन्वेस्ट होता है इतना प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। मतलब उनका अभी क्या है, दोनों का इन्वेस्टेड इतना मान लीजिए, कितना 23 27 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। वो 50 का वैल्यू आपको गिवन कितना है, 41400। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 41400 डिवाइड बाई 50। देन अनमोल इन्वेस्टेड पूछा जा रहा है, मतलब वो भी 23 नहीं होगा, 23 इंटू डिवाइड बाई 50, 23 इंटू 19044 होगा राइट आंसर। एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अच्छा वेट, एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 2% ऑफ voter did not cast their vote, अच्छा out of 12 votes 5% were declared invalid. One candidate secured 65% of valid votes. If the total number of voters was 252,000,
हाउ मैनी वैलिड वोट डिड लॉसिंग कैंडिडेट रिसीव। देखिए क्या काटना है, लेट टू वोटर डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट, लेट टोटल 100 कैंडिडेट थे पहले, ठीक है, अभी वो उनका छोड़ दीजिए, लेट 100 थे, इसमें 2% वोट डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट, मतलब 98 सिर्फ वोट देने के लिए गया है। आउट ऑफ फोल्ड वोट 5% वाला डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 98 में से डिक्लेयर इनवैलिड हो गया, मतलब 98 का 95% अभी निकाल दीजिए, कितना आएगा, कैलकुलेटर कर रहा हूँ, 98 इंटू 95 100। देखिए वो वाला इसी को सोल्यूशन करने में वो मतलब काट नहीं रहा है, मतलब वो उस प्रोसेस से वो नहीं होगा। देखिए अब नंबर से करिए, आंसर मिल जाएगा। इतना टोटल वोटर थे ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर इतना थे ना, देखिए 252000, ठीक है। इसमें आपको 2% मतलब डू नॉट कॉस्ट किए थे ना, मतलब उनका 98% निकाल दीजिए। देखिए आप 2% सिर्फ निकाल दीजिए, 2% कितना होगा, 50400, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं, 98% निकाल दीजिए, देन आपका मिल जाएगा। देन टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, इसमें इसी को माइनस कर लीजिए, कितना होगा 24696 इतना अभी, ठीक है। देखिए इसी में से आपको इनवैलिड वोट कितना मिल रहा है, इनवैलिड वोट 5% मिल रहा है ना। देखिए इसी में से उनका आप निकाल दीजिए, 95% निकाल दीजिए। देखिए 2469600 इंटू 95 100 कितना 2346120 आ रहा है। देखिए उनका 95% कितना है, देखिए 5 इतना टोटल वैलिड वोट है, मतलब आने के लिए ही इतना आया, मतलब इसमें फिर 5% इनवैलिड हो गया, मतलब 95% वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट कितना 2346120 अभी वैलिड वोट आपके पास है। देन विनर गेट 65% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, मतलब वो जो लॉस वाला कितना मिला है उनको 35% मिला है ना। क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी वैलिड वोट डिड लॉसिंग कैंडिडेट रिसीव, मतलब उसमें आपका 65% विनिंग कैंडिडेट मिल गया, मतलब हारने वाला कैंडिडेट कितना उन पाया है 35% ना, उनका 30% सिर्फ निकाल दीजिए इंटू 821142 आ रहा है। देखिए कहाँ पर है 8212, ऑप्शन बी राइट आंसर। If V age is 5 times difference age of C and D, D age is 10 year more than the age of V. If the age of C is 30 year, then minimum age D is what? देखिए difference in age of C and D. देखिए B age is 5 times different age of C and D. D age is 10 year more than age of V. Let B का एज आप X मान लीजिए, ठीक है। देन D का एज कितना हो जाएगा X + 10, वही तो बोला जा रहा है ना, D एज इज 10 ईयर मोर देन एज ऑफ B इफ C का एज आपको 13 गिवन है। देखिए देन क्या बोला जा रहा है, B एज इज 5 टाइम डिफरेंट एज ऑफ C एंड D, C एंड D का डिफरेंस एज से 5 टाइम ज़्यादा होगा, मतलब 30 माइनस X + 10, मतलब वो -X -10 हो जाएगा। देखिए इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना होगा। देन पूछा क्या जा रहा है, मिनिमम एज ऑफ D का एज पूछा जा रहा है।
देखिए वो कितना हो जाएगा 150 5x 50 इतना होगा ना। देखिए b कितना, b का वैल्यू x पुट कर लीजिए। देन यहीं पे वो वाला यहीं पे आ जाएगा, मतलब 6x इक्वल टू कितना 100, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/6 हो जाएगा। इतना हो गया। देखिए अभी d का पूछा जा रहा है, मतलब x का वैल्यू मिल गया, मतलब 100/6 + 10 कर लीजिए। इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 80/3। देखिए 100 + 60 मतलब 160/60, सॉरी 3 है ना, मतलब 80/3 आ गया ना, 38। वो खुद सिर्फ आपका वैल्यू पुट कर, मतलब आपको ऐड प्लस वो पॉइंट में है, सिर्फ वो ऐड करना है, इसमें क्या है। देन 39 क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रैवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर। अच्छा, जो सेम स्पीड, देखिए आपका यहीं पे स्पीड निकल जाएगा ना, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। कितना स्पीड आपको 60 मिल गया ना। देखिए हाउ लॉन्ग डिड टेक ट्रैवल 420 किलोमीटर सेम स्पीड, मतलब स्पीड आपको 60 रखना है, टोटल डिस्टेंस जाना है 140, बट कुछ टाइम निकलना है। टाइम यहीं पे निकल जाए, 60 यहीं पे लेके आ जाओ, 420/60 7 हो जाएगा ना, राइट आंसर। 40 क्वेश्चन वो भी इजी है, वो वाला कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव। देखिए कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 10% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। लेट टीवी वॉशिंग मशीन यहीं पे पुट कर लीजिए। देखिए कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 10% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, लेट टीवी 100, वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। देन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 5.5, वॉशिंग मशीन 90 था, 90 का निकल दीजिए वो वाला। देखिए 90 का 100 + 5.5 कर लीजिए। मतलब आप पॉइंट के लिए यहीं पे इस तरह कर लीजिए, हो गया ना, यहीं पे आ जाएगा ना कितना। देन टीवी डिक्रीज 71, मतलब वो बन जाएगा कितना, डिक्रीज 71 डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना 29 हो जाएगा। देखिए हो गया। देन टोटल 6 वॉशिंग मशीन 3 टीवी, 6 वॉशिंग मशीन 6 वॉशिंग मशीन 3 टीवी 3 टीवी, बस यहीं पे ऐड कर लीजिए, यहीं पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। बस वो वाला पहले लिख लीजिए नीचे, देन यहीं पे जो आएगा लेट वो वाला 100 आया, वो आएगा 120, मतलब वो 20 ज़्यादा आ गया, मतलब वो 20 ज़्यादा जो है उनका परसेंटेज निकलना है, और क्या है। Men can complete a piece of work in 16 days, while 9 men can do it in 8 days. How many days can 3 women and 2 men complete it? देखिए 5 men complete a piece of work in 16 days. 5 men 16 days, while 9 men जितना वो वर्क करेंगे इसी को 9 वुमेन 8 डे में ख़त्म करेंगे ना, वही तो इक्वेशन बनेगा ना। देखिए एक मैन का एफिशिएंसी m, 5 मैन का कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, वो 16 डे में ख़त्म करेंगे, मतलब इसी के साथ 60 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ना आपका टोटल, मतलब जो टोटल वर्क आ जाएगा उसी वर्क को वो वाला इस तरह भी सेम। हाउ मेनी डे कैन 3 वुमेन 2 मैन कम्प्लीट इट। देखिए यहीं पे मेन वुमेन का एक दिन का मतलब एफिशिएंसी मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा 16 × 5 कितना 80m, 80m इक्वल टू 9 × 8 72W, m/W का रेशियो कितना आ जाएगा 72/80, कितना आएगा देखिए 72/80 कितना आएगा 9/10, 9/10 आएगा। देखिए मेन का 9 होगा तो वुमेन का
10 होगा, वही तो बोला जा रहा है ना। देखिए देन हाउ मेनी डे कैन 3 men 2 men कंप्लीट इट डू। देखिए यहीं पे टोटल मैन का एफिशिएंसी यहीं पे पुट कर लीजिए, आपका टोटल वर्क मिल जाएगा ना। 5 × 9 × 16 कितना हो गया, 720 टोटल वर्क है। ठीक है, इसी को 3 men एंड 2 women कंप्लीट इट कितना दिन में करेंगे। देखिए डिवाइड बाई 3 women, 3 × एक वुमेन का एफिशिएंसी 10 प्लस 2 × 9 कर लीजिए, कितना आएगा 720, 3 × 10 प्लस 15। राइट आंसर डी 15 डे होगा। इसी को सोल्यूशन करने में 15 डे आ जाएगा। देखिए 1/20 व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/20, मतलब 2/100 का व्हाट परसेंटेज 1/20, वही तो पूछा जा रहा है ना, सिर्फ एक ही हिडन है, आप सोल्यूशन कर लीजिए। 43 क्या बोला जा रहा है, ये अमाउंट ऑफ सम इतना 5% न्यू कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 5 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए, कितना होगा 1/20 होगा ना, मतलब 20 से 21 2 ईयर के लिए, 20 से 21 टोटल कितना 400 से हो जाएगा कितना 21 21 21 × 21 कितना 441। ठीक है, देन मतलब वो कितना है 400 नहीं है, वो होगा वो कितना, इससे कितना टाइम ज़्यादा होगा 400 डिवाइड बाई 6000 कर लीजिए, इस तरह लिख लीजिए। देन अमाउंट कितना, मतलब वो भी 441 नहीं होगा, उस इतना टाइम ज़्यादा होगा, इतना टाइम ज़्यादा होगा ना। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा 441 इंटू 400, अरे 6615। देखिए वो मैंने वो उल्टा लिख दिया। देखिए 400 नहीं है इतना, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा होगा, इतना बाई इतना होगा ना, वो कटने के बाद वहीं 6000 बचेगा ना, मतलब वो वाला इतना टाइम होगा। मैंने मतलब चेंज हो गया मेरा। देखिए आप इसके साथ कर लीजिए, वो आ जाएगा डी आ जाएगा। देखिए 44 क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 14 लेट नंबर x 14 इक्वल टू 176 टाइम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/x का रेसिप्रोकल का 1/77 इतना ही बोला जा रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा। देखिए वो x इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा x² प्लस 14x 176 हो जाएगा ना। देन कितना हो जाएगा, इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, x² 14x माइनस 176 इक्वल टू 0 कर लीजिए। देन आप इसमें देखिए 22 × 8 176 हो जाएगा ना, मतलब x² माइनस आप लीजिए -22 लीजिए, -22x प्लस 8x 176 हो गया ना। देखिए देन आपका कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, x -22 प्लस 8x -22 इक्वल टू 0 हो कि नहीं होगा। देन आपका यहीं पे x का वैल्यू 22 आएगा ना,
देखिए वो वाला अब x प्लस 8x नहीं होगा ना, क्या हो रहा है, मैंने गलती कर दिया यहीं पे, मैंने प्लस, ये तो प्लस था ना, मतलब वो 22 वो वाला माइनस हो जाएगा ना, हो गया ना, इक्वेशन बन गया, मतलब वो देखिए x देन कॉमन आएगा कितना, x प्लस 22, वो 22 माइनस हो जाएगा, वो नेगलेक्ट कर लीजिए। देन वो वाला जो यहीं पे जो x आएगा यहीं पे प्लस 8 आएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा ना। टॉप ऑफ 45 हाइट बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन कार इन ग्राउंड इज 36, अच्छा यहीं पे 36 मतलब 30 डिग्री। हाउ फार द कार फ्रॉम टॉप ऑफ 45 हाइट फ्रॉम बिल्डिंग, बेस ऑफ द बिल्डिंग, हाउ फार इज, देखिए मतलब 45 हाइट है बिल्डिंग का, वही तो बोला जा रहा है ना। देखिए सिर्फ आपको पुट करना है, 10 वो बार पूछा जा रहा है, मतलब 10 30 इक्वल टू 45/x, यहीं पे 10 30 1√3 होता है ना, 45/x मतलब 45√3, √3 का वैल्यू कितना, देखिए 45 √3 कितना 77, राइट आंसर बी 1.73 याद रखना √3 का वैल्यू। देखिए वो इजी है ना, आपका सिर्फ आपका जो डायगोनल है को पता है, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यहीं पे ओ वाला वैल्यू गिवन है, यहीं पे 8x पुट कर लीजिए, 5x 3x पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है 47, ए आइटम सोल्ड C/B एंड देन D/C, मतलब देखिए B से पहले C खरीदा, C से D खरीदा, यार इक्वल प्रॉफिट 12%, मतलब वो इसमें 12% रखा था प्रॉफिट, वो भी 12% रखेगा। अनदर सेलिंग प्राइस D एंड दिस सेलिंग प्राइस ऑफ D इज 313, देन वो B का पूछ रहा है। देखिए आपका B फाइंड आउट करने के लिए बुलाया है ना, D आपका यहाँ पे गिवन है वो वाला पार्ट, देखिए लेट आपका B का प्राइस इसी को छोड़ दीजिए, लेट 100 था, ठीक है, वो आप बेचेगा कितना 12% प्रॉफिट में, मतलब 100 का 112% कितना आएगा 112 आएगा ना, मतलब अभी C के लिए इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, वो फिर से 12% डे में बेचेगा, मतलब कितना हो जाएगा 112 का फिर से 112% निकल दीजिए, कितना आएगा 125.44 आएगा, ठीक है। देखिए बट ओरिजिनली गिवन कितना है 313, देखिए 125.44 नहीं है, वो गिवन कितना है 313.60, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 313.60 डिवाइड बाई 125.44 टाइम ज़्यादा है, मतलब वो करने के बाद इतना ही आ जाएगा ना। देखिए अभी 100 नहीं होगा, 100 इंटू वो वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, देन आ जाएगा 250 आ जाएगा आपको। अरेंज आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है ना, देखिए अरेंज फॉलोइंग स्कीम असेंडिंग ऑर्डर दे डिस्काउंट, छोटा से बड़ा से, देखिए अब पहले वो वाला सिंगल डिस्काउंट वो तो 64 है, यहीं पे सक्सेसफुल डिस्काउंट निकाल दीजिए 100 लेके, देन यहीं पे 3% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 97% बच रहा है ना, देन फिर से 37 मतलब 63 बच रहा है ना, बस यहीं पे जो आएगा यहीं पे लेट 1 का प्राइस 1 रुपी, ठीक है, टोटल 6, इसी ऊपर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5 इंटू 100 कर लीजिए,
इसमें एक आ जाएगा, देन लिख लीजिए, वो वाला इजी है ना। 49 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्लस 18 ईयर टीचर। अच्छा देखिए, टू ट्रेन 165 195 लेंथ आर रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, द फास्ट रन रेट 83 किलोमीटर पर सेकेंड एट रेट, मतलब इस साइड इस तरह आ रहा है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन पर। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड होता है ना, ऐड कर लीजिए, यहीं पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगा ना। टोटल रिलेटिव स्पीड आ गया, देखिए स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। आपको टाइम निकालना है, यहीं पे स्पीड आ गया, देखिए डिस्टेंस कितना होगा, यहीं पे एक ट्रेन आ रहा है, यहीं पे एक ट्रेन आ रहा है, मतलब जो यहीं पे मतलब उनका इंजन इधर, उनका इंजन इधर, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ जब क्रॉस करेगा वो ट्रेन, अब बोलेगा ना क्रॉस कर गया, मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों लेंथ ऐड कर लीजिए। यहीं पे स्पीड किलोमीटर पर में आएगा, इसमें यहीं पे जितना स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड जितना आएगा उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करना है, देन आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना, देन यहीं पे टाइम निकल जाएगा ना। द एवरेज एज 14 स्टूडेंट क्लास 18 ईयर, मतलब टोटल एज कितना हो जाएगा 14 इंटू 18, ठीक है, जितना आएगा। द एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूड, यहीं पे लेट आपका 100 आया, इसमें टीचर का एज अभी इंक्लूड हो गया, देन एवरेज बिकम 19 ईयर हो गया, ठीक है। देखिए यहीं पे 14 स्टूडेंट मतलब अभी 41 हो गया, मतलब यहीं पे हिडन सिर्फ टीचर का एज आपको निकल जाएगा ना। देखिए डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा जा रहा है, देखिए यहीं पे फर्स्ट 2 डिजिट कुछ चेक करना है और अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। 52 क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर पेबल, कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 4 सीट बिटवीन बी एंड ए अनकाउंटेड राइट ऑफ बी। देखिए बी लेट ए, उनका राइट ए यहीं पे होगा ना, देन उनका बीच में 4 पर्सन होंगे ना, ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन बी एंड ए काउंटेड राइट ऑफ बी। बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, देखिए बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स का थर्ड लेफ्ट मतलब एक्स यहीं पे होगा ना 100%। डब्ल्यू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, देखिए डब्ल्यू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, वाई का थर्ड लेफ्ट फॉर, डब्ल्यू यहीं पे 100% बैठेगा ना। सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ ए एंड एक्स, ए एंड एक्स, ए एंड एक्स क्या मतलब, अदरवाइज वाई यहीं पे पुट कर लीजिए, वाई यहीं पे डब्ल्यू हो जाएगा, देन यहीं पे डब्ल्यू सीट लेफ्ट, डब्ल्यू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई हो गया। सी इज इमीडिएट नाइबर बोथ ए एंड एक्स, मतलब सी यहीं पे 100% हो गया ना। देखिए देन हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड सी, मतलब डी यहीं पे बैठेगा ना, राइट ऑफ डी, राइट मतलब 2 पर्सन होंगे ना, डी का राइट से, वाई एंड एक्स सिर्फ होगा ना। देखिए बार्ड कोड पूछा जा रहा है, देखिए इसमें बार्ड है, इसमें बार्ड है, कॉमन कोड निकाल दीजिए। एल वाई इसमें है, एल वाई इसमें 54। हाउ मेनी सच प्राइम नंबर देयर आर इमीडिएट फॉलो ऑड नंबर, हाउ मेनी सच प्राइम नंबर इमीडिएट फॉलो ए ऑड नंबर, मतलब इस तरह, ठीक है। ओ इमीडिएटली फॉलो, फॉलो वो वाला फैक्टर नहीं है, मतलब ओ फॉलो ए ऑड नंबर, ठीक है। आपका प्राइम नंबर उनका राइट में एक प्राइम नंबर चेक करना है। 55 देखिए कौन आएगा, यहीं पे 264 239, यहीं पे सिर्फ डिफरेंस कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए आपका गैप इतना बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको प्लस माइनस इस तरह हो रहा है, मतलब आपका गैप ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्क्वायर क्यू इस तरह हो रहा है, ठीक है। 56 ये बोला जा रहा है, मिस्टर
यहीं पे रख लेता हूँ। मिस्टर आखी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट गया। ही देन टेक लेफ्ट ऑन ड्राइव 11, देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 19. He take left on drive 21, drive फाइनल लेफ्ट टर्न, लेफ्ट ऑन ड्राइव 9 किलोमीटर स्टॉप पॉइंट फी देखिए यहीं पे 10 गया था, यहीं पे 19 आ गया, मतलब फिर से 9 आ गया, मतलब जितना गया था इतना आ गया ना। देखिए सिर्फ वो वाला 11 ऊपर गया था, 21 नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे कितना आ गया 10, सिर्फ 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाना पड़ेगा ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए हाउ मेनी सच डिजिट इन देयर इज व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए ओड नंबर, ओड डिजिट, इवन ओड डिजिट ऑल्सो इमीडिएट फॉलो ए ओड डिजिट। इस तरह सीक्वेंस ऑफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है 58, all purchase are trunk, all are trunk, all bag are all bag, सॉरी all bag यहीं पे हो सकता है, all bag are trunk, some pouches are bag, some pouches are bag यहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। some trunk are bag, some trunk कुछ trunk, bag होंगे ना, ओनली सेकंड फॉलो होगा, ओनली इसका कंक्लूजन सेकंड फॉलो। यहीं पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहीं पे +3 हो रहा है, मिल गया डाटा, +5 यहीं पे 7 होगा, देन 1 3 5 7 यहीं पे 9 होगा, 56 व्हाट कमिंग क्वेश्चन मार्क, देखिए 0 -2 हो रहा है, यहीं पे -1 हो रहा है, यहीं पे डिफरेंस कितना है -38, 11 + 11 डिफरेंस है ना। वे माइनस क्यों लिखा, टाइपिंग एरर है क्या और क्या। देखिए 8 यहाँ पे तो क्यू हो रहा है ना, 2Q, हाँ यहाँ पे हम कमेंट करके लिखना है और आपका कोई प्रोसेस पता है। देखिए नंबर सिस्टम आप थोड़ा रिलैक्स करके सोचोगे आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप मैसेज करना है, मैं उनको चेक करके थोड़ा बता भी दूँगी शॉर्ट्स में। देखिए 61 क्वेश्चन क्या है, वो आपके लिए टैक्स मान लीजिए। नो फादर इज़ मदर, फादर मदर नहीं है, बाउंडेशन। नो मदर इज़ सन, कोई मदर सन नहीं है, उनका बीच में बाउंडेशन, बट उनका बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑल मदर आर फादर, और मदर आर फादर नहीं है। नो फादर इज सन, कोई भी फादर सन यहीं पे तो नहीं हो रहा है ना, रॉन्ग, बहुत रॉन्ग हो गया। यहीं पे देखिए व्हाट इज कम नेक्स्ट, वो वाला ऑलवेज ऑप्शन से चेक करोगे, ठीक है। देखिए 45 पहले नंबर का डिफरेंस चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है ना, मतलब यहीं पे कितना हो जाएगा 33 आएगा ना। देखिए ऑप्शन से ए बी का बीच में कनेक्ट होगा, तो यहीं पे आई दोनों में जी कॉमन है ना, मतलब सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है कोड, आपको मिल जाएगा आंसर। यहीं पे म्यूजिक का कोड पूछा जा रहा है, म्यूजिक दोनों का कॉमन कोड जहाँ पर है निकाल दीजिए। देखिए कॉमन नहीं है, यहीं पे सिर्फ म्यूजिक है, ठीक है। यहाँ पे इज लाइफ
इज लाइफ मतलब दोनों कॉमन कोड, इज लाइफ दोनों का इसमें दोनों कॉमन कोड निकल दीजिए, सिर्फ म्यूजिक का कोड एंड पे बच जाएगा ना। 64 A man OPQ sitting around a circular table facing center of table. 3, 4, 5, 6, 7. Only 2 people sit between X and W. One counter right of X. X and W हो गया। Only 2 people sit between X and W. One counter right of X हो गया। Only 2 people sit between W and M का बीच में 2 people, काउंटर राइट ऑफ W मतलब यहीं पे M होगा ना, देखिए। Only 3 people sit between X and N का बीच में 3 people बैठेंगे, काउंटर राइट ऑफ X and N, लेफ्ट वन काउंटर राइट ऑफ X, देखिए लेफ्ट राइट 1 2 3, यहीं पे N होगा ना। P सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y का बन गया डाटा, देखिए वो वहीं पे बैठेंगे ना। हो सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वो का थर्ड लेफ्ट पर, यहीं पे Y होगा ना, Y लिखा ना। P सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, हाँ यहीं पे राइट आंसर Y बन जाएगा ना। 65 हाउ मैनी सच सिंबल which immediate preceding पीछे एक नंबर also immediate follow a नंबर, इस तरह आपको सीक्वेंस चेक करना है इसमें। 8% सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल और आपके लिए टास्क है, इस तरह क्वेश्चन है। उस सिटिंग टेबल 3 क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ। 67 यहीं पे 23 32 आप इस तरह क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन से ऑप्शन से करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 23 32 कितना बढ़ रहा है, 7 प्लस 9 हो रहा है ना, देन यहीं पे प्लस 9 हो रहा है ना, मतलब वो 59 होगा ना 100%, मतलब बी सी में ए कौन एक होगा ना। देखिए इसमें एन इसमें ए कॉमन है, देन सिर्फ ए सार मतलब सेकंड VUTS का कोड चेक करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 68 इफ 2 इज एडेड इच और डिजिट में इसमें जो और डिजिट मतलब 2 5 हो जाएगा, इस तरह आपको सिर्फ चेक करना मिल जाएगा। देखिए 69 क्वेश्चन भी माइनस का कोड क्या है, वाइफ भी का वाइफ जी, इस तरह लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 70 दोनों का कोड तरह आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम कोड। 71 सेम, यहीं पे जो सीक्वेंस है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस है, देन दोनों सीक्वेंस की तरह इसमें को पुट करना है, इस तरह का वो वाला सेम। 73 सेम ही वही तो। प्रोविन रैंक 10th फ्रॉम टॉप दैट फ्रॉम बॉटम, मतलब बॉटम टॉप दोनों टाइम में काउंट किया गया ना, मतलब 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, मतलब 2 का काउंट किया गया ना इसलिए। 75 तरुण स्टार्ट पॉइंट वाई ड्राइव 36 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 36 वेस्ट, ही टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव 83, इस तरह पहले एक अरेंज कर लीजिए, देन आप पुट कर लीजिए, इस तरह मैंने किया है ना, वो बड़ा चीज़ नहीं है। यहीं पे सिर्फ जहाँ पर प्लस वहीं पे माइनस लिखना है, जहाँ पर माइनस है इंटू प्लस लिखना है, इस तरह सीक्वेंस लिखना है। 77 आपको करना है, वो ईजी है, वो आपके लिए टैक्स है, इस तरह। 79 छोड़ दीजिए, डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। थैंक यू।